SKC Pranam. Boliye SKC Pranam. Today is Monday Munch, the second Monday Munch story that we are going to put up on our channel. The Monday Munch 2 is a part of DDPG. Let me tell you that Monday Munch is a part of DDPG. And what is DDPG? DDPG is nothing but, it is an acronym for, it's a short form for Daily Dosage for Personal Growth. हम सबका growth के लिए daily dosage, we require vitamins for our growth, we require supplements for our growth. वैसे ही DDPG is an acronym, a short form for daily dosage for personal growth. Like for Monday, we have Monday Munch. For Tuesday, we give you the Tuesday treat. Wednesday, we give you Wednesday delight. Thursday, we give you Thursday twist. Friday, we give you Friday feast. Saturday surprise. And so the story goes on. Here we are with the Monday Munch for today called Monday Munch 2. गया हफ्ते में मैंने एक स्टोरी बोला था. What did you learn from that very, very powerful story? It's very motivating story. If you cannot learn something from that story, if that story cannot motivate you, if that story cannot inspire you, nothing else in the world can do. मैं बार बार वो story, I revisit the story and I get the inspiration, I get the motivation to inspire myself. And today we have a very, very powerful story. We have a very, very powerful story for you. इस कहानी में जो हम आपको आज पार्ट 2 स्टोरी बताने वाले हैं, इस कहानी में 4 पात्र हैं, 4 कैरेक्टर्स हैं. The part 1 story was told last Monday for you. The first character is Jim Brown, the historical football player. Why is it historical? Because if you go to Google and you ask Google Chacha, if you go to Wikipedia and ask who is Jim Brown, it tells you that Jim Brown is a famous American football player, a huge sensation of its times. बहुत बड़ा sensation है उसके time का. This is our first character जिसके बारे में आपने already सीख लिया है last story में. What all he has taught you in the story will come in later on in the class. The second sensation, second person, our second character of our story is O.J. Simpson. O.J. Simpson is nobody but, his short form stand is Oriental, son of James. His early life, we have learned that he has got rickety pencil legs. बहुत rickets था, pencil legs था, चल नहीं सकता था, बैसा के लेकर चलता था. He needed crutch for walking. And later on, he became the world football champion, world famous football champion, O.J. Simpson, the second character of our story. तीसरा character जिसको हम introduce करने वाले हैं आज, उसका नाम है Bobby Richards. Bobby Richards is a faith proclaimer. Faith proclaimer मतलब who has a tremendous followership. जब भी वो बात करता है, लोग स्टेडियम भर के आते हैं उसके बात सुनने के लिए to motivate themselves. They come because he was a person who could inspire the world. He was a person who could heal the world. Heal the world मतलब लोगों को रोग, लोगों का physical and mental रोग दूर करने वाला. Through faith was this man called Bobby Richards. उसके टाइम का faith के वजह से, faith proclaiming के वजह से, वो एक अमीर इंसान, बहुत बड़ा, he was the top richest man also in the world, which he gathered all his money and all his wealth through proclaiming of faith, faith proclaiming. And हमारा next पात्र इस character का, the next character is बिल्ली JK. बिल्ली JK यह चौथा आखिरी character हमारा स्टोरी का है. बिल्ली बोल के एक लड़की थी जो 441 pounds थी. 441 pounds at the age of 14. 1 pound मतलब लगभग 2200 ग्राम, मतलब 2 किलो 200 ग्राम 1 पाउंड होता है. और ये बिल्ली 13 साल की उम्र में 441 पाउंड थी, मतलब 200 किलो से ऊपर थी. She was 200 kilos at the age of 13 and 14. She could not even walk. She could not carry her own body weight. ये हमारा चौथा character है. Now let us come back to our learnings. Right? हमने क्या सीखा? हमने 4 character आपको introduce किया है. पहला character जिम ब्राउन जो world famous football player था. आज भी गूगल करोगे मालूम पड़ेगा. He was playing for a team called 49ers. हमारा second character is O.J. Simpson, Oriental, son of James, जो भी फुटबॉल सेंसेशन था और जिम ब्राउन से बहुत बड़ा सेंसेशन बना. हमारा तीसरा कैरेक्टर इज अ फेथ प्रोक्लेमर.
a person who goes around inspiring people, a person who goes around healing people by the name Bobby Richards. और चौथा कैरेक्टर ऑफ आवर स्टोरी इज बिल्ली, बिल्ली जेके। बिल्ली नाम बड़ा अजीब सा लगता है, हाँ यही उसका नाम था बिल्ली। ओवरवेट थी, 441 पाउंड्स थी। पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी is the first learning that we have is this. Learning number 1. This is taught to us by Jim Brown. He said, today must be yesterday plus. आज कल से बेहतर होना चाहिए। मेरा आज मेरे बीता हुआ कल से बेहतर होना चाहिए। मेरा शाम मेरे सुबह से बेहतर होना चाहिए। मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर होना चाहिए। टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस। लर्निंग नंबर 1, जो भी आदमी रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, अपने कल की गलतियां को आज सुधारता है, कल के बैंक बैलेंस को आज सुधारता है, कल की आदतों को आज सुधारता है, कल के शॉर्ट कमिंग को आज सुधारता है, वो आदमी जिंदगी में बड़ा बन जाता है। बिकॉज उसका लाइफ का पॉलिसी रहता है, लाइफ का प्रिंसिपल रहता है, टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस। अगर आप ये करोगे, टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस, nobody can stop you from achieving it big in life. Learning number 1. Learning number 2, also we learned from Jim Brown, the character of Jim Brown. He said, my best is yet to come. मेरा बेस्ट इज येट टू कम। मैंने सब कुछ पाया है। जब भी वो कोई गोल मारता था, पेपर में ऐड आता था, पेपर में न्यूज आर्टिकल आता था कि जिम ब्राउन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ही वॉज नेवर गेटिंग कॉम्प्लेसेंट। वो हमेशा बोलता था, माई बेस्ट इज येट टू कम, मेरा बेस्ट आना बाकी है। मैं देखता हूं बहुत लोग दुनिया में अचीव कर लेते हैं, दे गेट अचीवमेंट एंड दे गेट कॉम्प्लेसेंट, ओवर कॉन्फिडेंट एंड स्टॉप्स। मेरे को याद आता है, एनीबॉडी कैन बी नंबर 1, कोई भी दुनिया में नंबर 1 बन सकता है, बट इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन नंबर 1। जिंदगी में नंबर 1 बनना बहुत आसान है। एनीबॉडी एक बार के लिए नंबर 1 बन सकता है, बट वो नंबर 1 पोजीशन बनाए रखना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और वही आदमी नंबर 1 पोजीशन बन सकता है, रख सकता है, जो ये बिलीव करे कि माय बेस्ट इज येट टू कम। मैं कितना भी हासिल किया है, ये मेरा बेस्ट नहीं है, मेरा बेस्ट इज येट टू कम। ये बिलीव रखने वाला था जिम ब्राउन, इसीलिए कंसिस्टेंटली वो अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का। दिस वाज आवर लर्निंग नंबर 2. Our learning number 3 was also from Jim Brown. He said, I have no competition with anybody. मुझे दुनिया में किसी और के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं है। I am my competition. मैं ही मेरा कंपटीशन हूं। I pledge to consistently break my own record. I repeat it. तुम सबके बेनिफिट के लिए I'm repeating it. It says, I have no competition with anybody. जिम ब्राउन का बिलीफ था, मुझे किसी और प्लेयर से, ना मेरे टीम में ना दुनिया में, फुटबॉल में मुझे और किसी भी टीम प्लेयर से मेरा कोई कंपटीशन नहीं है। I have no competition with anybody else in this planet. I am my competition. मैं मेरा खुद का कंपटीशन हूं, और मैं प्लेज करता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं कंसिस्टेंटली मेरा ही रिकॉर्ड तोड़ते चलूंगा। मैंने मेरा कल का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। अगर कल मैं 70% लाया है, इस साल मैं 72 कम से कम लाऊंगा, 71 लाऊंगा, 70 पॉइंट लाऊंगा, लेकिन उससे कम नहीं लाऊंगा। आज मैंने रनिंग किया है, 9.8 सेकंड में 100 मीटर भागा है, तो कल मैं 9.7 सेकंड में करूंगा। मैं ही मेरा कंपटीशन हूं। कल मैंने 1000 स्टेप चला है, आज मैं 1200 स्टेप चलूंगा। कल मैंने आधा घंटा जॉगिंग किया है, आज मैं कम से कम 31 मिनट जॉगिंग करूंगा। मैं कल से बेहतर बनूंगा। आई एम माई कॉम्पिटिशन। मेरा जो भी कॉम्पिटिशन, मैं खुद हूं। मेरा पास्ट रिकॉर्ड मैं तोड़ते चलूंगा। और ये जिम ब्राउन ने जब माना, इसीलिए जिम ब्राउन बन गया दुनिया का फेमस फुटबॉल चैंपियन, और कंसिस्टेंटली रहा 10 साल तक। रोज के अखबार में किसी और ने वो जगह नहीं लिया, कोई और जगह नहीं ले पाया, जब तक कोई और उसका ही जो उसको रोल मॉडल मानने वाला आदमी केम एंड ब्रोक द रिकॉर्ड। तब तक कोई तोड़ नहीं पाया जिम ब्राउन का रिकॉर्ड, क्योंकि जिम ब्राउन का ये 3 पॉलिसी था। जिम ब्राउन मानता था कि ये 3 मेरा है। द फर्स्ट लर्निंग, आज टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस, माय बेस्ट इज येट टू कम, and I have no competition with anybody. I am my competition. I pledge to consistently break my own record. ये तीनों जिम ब्राउन से सीखा हमने। और वो बच्चा ओरिएंटल जो सपना देखता था
कि एक बार उसको अपने रोल मॉडल को देखने मिलेगा, एक बार अपने रोल मॉडल को वो दर्शन कर पाएगा। उससे क्या सीखने मिलता है? ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप। सपने वो नहीं होते जो आप सोकर देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट यू सी इन योर स्लीप, ड्रीम्स आर थिंग्स व्हिच यू डू नॉट लेट यू स्लीप। रतन टाटा जी ने भी यही बोला था, रतन टाटा भी यही बोलता है। जब यहां पर वसई में मैं आया 2010 में, और ये बिल्डिंग बनने से पहले यहाँ आया, बहुत बड़ा कचरों का ढेर था, यहाँ पर एक आधा पहाड़ पड़ा था, और ये एक डंपिंग ग्राउंड था जहाँ स्कूल है। और मैंने ये स्कूल बिल्डिंग को इमेजिन किया था 2010 से कंसिस्टेंटली। जब रात को सोने जाता था मैं, तो मेरी नींद नहीं आती थी, क्योंकि ये सपना था एक कब मेरा सपना सच हो जाएगा। I put everything together to ensure, इसलिए 3 साल में, in spite of all the odds, 3 साल में ये स्कूल मैंने बना दिया। 2013 में हमने इसका उद्घाटन कर लिया। क्या क्या चैलेंजेस थे? I'll come to what are the challenges I had. Let us come to learning number 5. Dreams don't work. ड्रीम वो है जो आपको सोने नहीं देती, बट अगर आप सोने नहीं देगा, अपने आप सच कभी भी नहीं होएगा। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ड्रीम्स कभी सच नहीं होते जब तक आप उसको सच नहीं करेंगे। कोई तीसरा बाहर वाला आदमी, नो अदर फोर्स फ्रॉम आउटसाइड कैन कम एंड मेक योर ड्रीम ट्रू। आपको अपना ड्रीम सच करना होगा। ड्रीम्स डोंट बिकम ट्रू, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। आपको अपना ड्रीम सच करना होगा। 2010 से 2013 तक कंसिस्टेंटली ये बिल्डिंग का सपना मेरे सर में था। आज नया सपना है, दूसरा चीज है मेरे पास। मुझे मेरा बायजू की तरह ऐप लाना है, मुझे एक पॉलिटिकल बुक लाइक फ्लिपकार्ट का एक प्लेटफॉर्म लाना है, ऑनलाइन की तरफ मैं वर्किंग ऑन दैट। वो ड्रीम मुझे सोने नहीं देती, and I am working on that. Dreams don't become true, dreams don't work unless you do। और ये चीज हमें वो छोटा बच्चा, ओरिएंटल 22 बच्चा सिखाता है। उसका सपना उसके रोल मॉडल को मिलने का, वो अपने आप सच नहीं हुआ, उसने सच किया। गांव से भाग गया, कैंटीन में काम किया, 3 महीना मेहनत किया कैंटीन में, अपाहिज बच्चा घर से दूर रहा और किसी कोने में पड़ा रहा, डिश वॉशिंग किया, प्लेट धोया, उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उसने मेहनत किया, क्योंकि उसको अपना सपना सच करना था। Here we go to the next one. I will achieve my dreams no matter what. मैं मेरा ड्रीम अचीव करूंगा नो मैटर व्हाट। बहुत लोगों को बोलते हैं हम, आप लाइफ में बड़ा क्यों नहीं हो पाए? तो बोलते हैं वो बड़ा इसलिए हुआ कि उसका चाचा था जो पॉलिटिशियन था, वो बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि उसके पास का डैडी रिच था, वो बड़ा इसलिए हुआ कि उसके कॉन्टैक्ट अच्छे थे, वो बड़ा अच्छा हुआ इसलिए कि उसके हाथों में लिखा बिकॉज ऑफ। अरे आई विल अचीव माई ड्रीम नॉट बिकॉज ऑफ, आई विल अचीव माई ड्रीम इन स्पाइट ऑफ। जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूं। बिकॉज ऑफ नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ मतलब मुझे मेरा सपना सच करने के लिए बिकॉज चाहिए। मुझे मेरा डैडी का कांटेक्ट चाहिए, मेरा पिताजी रिच होना चाहिए, मेरे अच्छे रिलेशन होना चाहिए, मेरे हाथों के लकीरों में लिखा होना चाहिए, मेरे यहां पर लिखा होना चाहिए। जोक है सर। आई एम नॉट गोइंग टू बिकम, मेरे ड्रीम सच नहीं होंगे बिकॉज ऑफ, माई ड्रीम इज गोइंग टू बिकम ट्रू इन स्पाइट ऑफ। क्योंकि ओरिएंटल ने नहीं सोचा कि मेरे को मुझे मेरे गुरु को मुझे मेरे गुरु को देखने मिलेगा। अगर मगर कुछ नहीं, मैं टिकट नहीं निकाल पाता हूं, मेरे डैडी मुझे फुटबॉल देखने नहीं लेके जाएंगे, मैं 11 साल का बच्चा हूं, मुझे फुटबॉल स्टेडियम में जाने नहीं मिलेगा, ये सब चीजें बिकॉज होते हैं। कुछ चलेगा, फिर भी मैं मेरे गुरु को देखूंगा। उसके बाद जब उसने कसम दुनिया को बोला कि जिम ब्राउन मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, उसने ये नहीं सोचा मैं कैसे रिकॉर्ड तोड़ूंगा, मेरा पैर नहीं है, फिर भी मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा इन स्पाइट ऑफ। जब मैं यहाँ पर वसई का स्कूल बनाने आया था, यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड था, पहाड़ था, और पहाड़ वालों का जाने का रास्ता था बीच में से, रोड इन बिटवीन, जो एक मंदिर तोड़ के बनाया गया था। और वहां के लोग बोले ये रोड होना चाहिए, हमको जाने का रास्ता चाहिए। और यहाँ पर ऑलरेडी एक बिल्डिंग थी किसी और की, वो बिल्डिंग को तोड़वाना और रास्ता को मूव करके दूसरे जगह पर कर देना,
और यहाँ का डंपिंग ग्राउंड हटाना, यहाँ पर एक पब्लिक टॉयलेट था उसको हटाना, और उसके बाद एक स्टे ऑर्डर आया, 9 महीने तक बिल्डिंग स्टे में थी, वो स्टे ऑर्डर हटने का तुरंत काम करना और बैंक से लोन लेकर बनवाना। मेरे को कोई कारण नहीं था, मेरे पास कोई फैमिली कॉन्टेक्ट नहीं था, मेरे पास कोई, आई मेड इट हैपन इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स, आई विल मेक इट हैपन। क्योंकि मुझे ओजे सिम्पसन जैसा कहानी मुझे बचपन में सुनने मिला, उससे मैं इंस्पायर होता था। अगर ओरिएंटल एक लंगड़ा लड़का जिसको पैर अपाइज है, अगर वो वर्ल्ड फेमस सेंसेशन बन पाता है, तो मैं कम से कम एक स्कूल बिल्डिंग तो बना ही पाता हूं। इट इज नथिंग कंपेयर टू जो ओरिएंटल ने किया है, इट इज नथिंग, माय अचीवमेंट इज नथिंग, कुछ भी नहीं है। अगर वो बच्चा वर्ल्ड फेमस फुटबॉलर बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं। हम वही तो गाना गाते हैं ना, अगर वो कर पाता है तो मैं क्यों नहीं, मैं शिखर क्यों नहीं पहुंच पाता हूं। मैं शिखर पहुंचूंगा क्योंकि मेरे में दम है। आई एम गोइंग टू रीच माय गोल। दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम कैरेक्टर्स लाइक, मैं इसलिए बोला आपको स्टार्टिंग में, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोस्ट पावरफुल स्टोरी। इफ टुडे यू कैन नॉट इंस्पायर योरसेल्फ, अगर आज की कहानी से आप इंस्पायर नहीं हो सकते हो, दुनिया में कुछ भी चीज आपको इंस्पायर नहीं कर सकती है। बिलीव मी, आपके पास एक वीडियो रहेगा जो आप बार बार देख पाओगे। मंडे मंच 1 40 मिनट, मंडे मंच 2 अबाउट 1 घंटे का वीडियो। अगर आप ये वीडियो बार, जब भी आप मोटिवेशन लो होता है, ये वीडियो देखो। बिलीव मी, ये वीडियो रिविजिट इट एंड यू विल अगेन गार्नर दिस थिंग दैट you can grow. Let's come to the next moral that we have. Our next moral is, after this, learning number 7. Learning number 7 says, I will follow through in spite of all challenges. मेरे कोई भी चैलेंज हो, आई विल फॉलो थ्रू। हमेशा मैं एक्सरसाइज करता था बटाटे में स्ट्रॉ डालने का, बटाटे में स्ट्रॉ डालने का। आई ऑलवेज डू एक्सरसाइज। सो इन दैट एक्सरसाइज आई टेल द वर्ल्ड, मैं सिखाता हूं बच्चों को, एक बटाटा हाथ में देता हूं मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और स्ट्रॉ जिससे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो लेते हैं। हम बच्चों को बोलते हैं कैन यू पुट इट थ्रू, बच्चे बोलते हैं नहीं, कोशिश करते हैं। बट जब मैं सिखाता हूं ऐसे डालते हैं, वो बटाटा के अंदर से उस तरह से स्ट्रॉ बाहर निकलता है, यहां डालो यहां निकल जाएगा, उतना पावर उस स्ट्रॉ में होता है। मैं सिखाता हूं, करवाता हूं। यस, वैसे आपको अपना सपना थ्रू फॉलो करना है, थ्रू, लेट इट गो थ्रू, उसको आधे में नहीं छोड़ना है। आई विल फॉलो थ्रू, जो भी लिया आई विल फॉलो थ्रू। तो वो ओरिएंटल ने सिर्फ चलना नहीं सीखा, ओरिएंटल ने सिर्फ बैसाखी दूर नहीं किया, ओरिएंटल ने दौड़ना नहीं सीखा, ओरिएंटल ने फुटबॉल खेलना नहीं सीखा, ओरिएंटल ने अपना लाइफ नॉर्मल नहीं करना सीखा, बट ओरिएंटल ने दुनिया का सेंसेशन बनना कर अपना ड्रीम तो पूरा किया, रुका नहीं वो। लेट मी फॉलो थ्रू, यही चीज हमें ओरिएंटल बच्चा सिखाता है। बहुत सारे मॉरल हमने सीखे, एक ही कहानी में इतने सारे मॉरल अगर हमें मिलेगा, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। लर्निंग नंबर 8, उसने पूरे भीड़ के सामने उसने बोला, जिम ब्राउन एक दिन मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। सर जिम ब्राउन, आई विल ब्रेक ऑल योर रिकॉर्ड्स, ऐसे एक बच्चे ने बोला। सलमान खान का मूवी का डायलॉग याद आता है ना, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। जी हाँ, ये उसने दुनिया को छोड़ो, कमिटमेंट कर दिया, बोल दिया जिम ब्राउन तेरा रिकॉर्ड मैं दिन तोड़ दूंगा, बस बोल दिया एक बार बच्चे ने। दुनिया भूल गई उसने क्या, एक बार में आ गया, 2 4 15 दिन में दुनिया भूल गई। लेकिन ये बच्चा नहीं भूला, ये बच्चे ने अपना शॉर्टकमिंग को ओवर किया, मेहनत किया। पहला 1 बैसाखी कम किया, फिर 2 बैसाखी कम, गिरा उठा, ट्राई किया, चलना सीखा, भागना सीखा, फुटबॉल खेलना सीखा, और फिर उसने अपने आप को नेशनल टीम तक ले गया, और फिर उसने तोड़ दिया उसका रिकॉर्ड। क्योंकि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। याद रखो, आई ऑलवेज से दिस टू द वर्ल्ड, मैं हमेशा दुनिया को बोलता हूं, आई ऑलवेज से दिस टू द वर्ल्ड, व्हाट डू आई से इज, कैरेक्टर वो नहीं होता, बोलता ना कैरेक्टरलेस है, कैरेक्टर कुछ और करने से नहीं होता। कैरेक्टरलेस वो आदमी होता है जो अपना वर्ड नहीं रखता, जबान, एक बार जबान दे दिया फिर जबान रखने के, दैट्स ऑल, बोल दिया ना मैंने, दैट्स ऑल। मेरा शाल्टन को बचपन से एक प्रॉब्लम है, उसका ये प्रॉब्लम नहीं पापा लाके देगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम पापा ने बोलना चाहिए क्यों देगा, पापा मुझे ये चाहिए, मैं जब तक मेरे मुंह से नहीं निकलेगा उसका प्रॉब्लम है। और मैंने बोला शाल्टन तेरे को मैं ये चीज लाके दे दूंगा, फिर चाहे वो बाइक हो, फिर चाहे कंप्यूटर हो, चाहे लैपटॉप हो, मेरे मुंह से निकल गया शाल्टन मैं तुझे लाके दूंगा, फिर उसको मालूम है मेरे पापा कुछ भी करेंगे, दुनिया से लड़ेंगे, पर अपना जबान रखेंगे। मुझे याद है वो जब छोटा था, एक बच्चा था, ही डिडंट अंडरस्टैंड द रियलिटीज, फिर टू आस्क मी पापा मुझे ये चाहिए, बेंटन उसका था, बेंटन वाज हिज फेवरेट, ये कब नया नया चीज कुछ में, पापा मुझे ये चाहिए,
और मैं अपने काम से बम्बई जाने का, आते वक्त उसकी मम्मी का मैसेज आने का मुझे, टुडे यू कमिटेड टू शाल्टन, हमें शाल्टन को सिखाना है, जबान रखना है, टुडे यू कमिटेड टू शाल्टन। ऐसे ओ माय गॉड, कितना बच गया 10। तो मैं दुकान बंद को खुलवाने का, मेरे दोस्तों को बोलने का दुकान खुलवा, मैं आ रहा हूं, दुकान खुलवाने का, बंद दुकान को खुलवा के उसका सामान लेके आने का जो कमिट किया है, रिमेंबर कितनी बार मैंने बंद दुकान खुलवाया है, जस्ट बिकॉज मैंने कमिटमेंट दिया शाल्टन को, मुझे पूरा करना है। सो व्हेनेवर यू गिव कमिटमेंट to the world or to yourself, ensure that you follow it. आप अपनी नजर में ऊपर आ जाओगे। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। अभी आप भी मेरे से कमिटमेंट एक बार ले लो, बस खत्म, मैंने एक बार बोल दिया तो हो जाएगा। नाउ लिस्ट ऑल दैट यू नीड। अगर मैंने अभी आपको बताया, एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट ऑल दैट यू नीड, डिजायर एंड एस्पायर, बैठो और लिस्ट बनाओ, आपको क्या चाहिए। भगवान आपके सामने आ जाता है और आपको बोलूंगा लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ कि आपको क्या चाहिए। लिस्ट ऑल दैट यू नीड, डिजायर एंड एस्पायर। आप बोलोगे लिस्ट, मैं आपको एक्सरसाइज अभी करवाता हूं, सिर्फ मैंने बहुत बार करवाया है। पेपर लो, क्या क्या चाहिए आप लिखो। लोगों ने 1 मिनट के बाद ऊपर देखा, ऐसा लिखने के बाद, मतलब लिखो क्या क्या चाहिए, लिस्ट बना 1 2 3 4। कुछ लोगों ने 2 मिनट, कुछ 3 मिनट, पूरे क्लास ने 5 मिनट का कोई ठिकाना नहीं, सबने बोला मेरा लिस्ट रेडी है सर। मैं बताओ बुक बताया, बोला सोचो और क्या चाहिए, बोला सर इतना ही चाहिए। लिस्ट ऑल दैट यू हैव। लोगों का पेज देखा मैंने, किसी का 1 पेज, किसी का 1.5 पेज, नॉट मोर देन 1.5 पेज, कोई भी 2 पेज नहीं लिखा था पूरे क्लास में। आज तक मैंने हजारों सेमिनार किए हैं, किसी लोगों ने, कोई भी आदमी ने 2 पेज के ऊपर लिस्ट नहीं बनाया। मतलब क्या चाहिए बोल, भगवान तेरे सामने आएगा और आज शाम को गेन करेगा, दे देगा। मैक्सिमम 1.5 पेज, 2 पेज, 2 पेज हुआ ही नहीं किसी का। फिर मैंने बोला 2 मिनट रुकने के बाद, अब एक लिस्ट बनाओ कि आपके पास क्या क्या है, क्या क्या है, अब लिस्ट बनाओ। तो आदमी बोलते मेरे पास घर है, मेरे पास पापा है, मेरे पास मम्मी है, मेरे पास भाई है, बहन है, मेरे पास किचन में अच्छा सामान है, मेरे पास ये 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, लोग 1 घंटा लिखते रहे मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास आंखें हैं जो औरों के पास नहीं है, मेरे पास पैर है जो औरों के पास नहीं है, आई कैन कैरी माय सेल्फ। मेरे पास सेंसेशन है, बहुत लोगों के पास नहीं है। मेरे पास सुनने का ईयरिंग है, ये जो लोगों के पास आज बहुत लोग बहरे हैं, मैं बोल सकता हूँ, बहुत लोग दुनिया में मुक्के हैं। मेरे पास चलने वाला किडनी है, पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायलिसिस। ऐसे लिस्ट बनाया लोगों ने, 2 घंटा, 3 घंटा लिखा, फिर भी बोला सर द लिस्ट इज एंडलेस। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या सीखने मिलता है हमको, और ये उस एक्सरसाइज नहीं, सब जगह हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा है, और जो हमें चाहिए वो लिस्ट छोटा होता है। फिर भी हमेशा हम जो नहीं है उसके ऊपर होते रहते हैं, और जो है वो हम कभी भी खुश नहीं होते हैं। इसीलिए हमारा नेक्स्ट वाला ये मॉरल है, काउंट योर ब्लेसिंग्स नॉट योर सॉरोज। जिम ब्राउन का फॉलोवर, का फैन ओजे सिम्पसन से यही सीखने मिलता है। ओजे ओरिएंटल ने उसका ब्लेसिंग ढूंढा, उसने नहीं देखा कि सौरव उसके टांग नहीं है, उसने बोला मेरे में और भगवान ने क्या दिया है, मुझे एनर्जी दिया है, मुझे विल पावर दिया है, बस टांग नहीं तो क्या हो, विल पावर तो है, मैं मेरे विल पावर से मेरे शॉर्ट कमिंग को दूर कर दूंगा। ये है लर्निंग नंबर 9। लर्निंग नंबर 10, चाहे कुछ भी खो दो जिंदगी में, होप मत, उम्मीद मत खो दो। उम्मीदों से दुनिया चलती है। देखो मैनेजर ने इंस्ट्रक्शन दिया हाफ टाइम बाद, क्या इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप अपना प्लेट धोना, पूरा सामान रख देना, टेबल बाजू में रखना, उसके बाद आप जाके स्टूडियो में देख सकते हो। ये लड़के ने उम्मीद नहीं तो छोड़ा, इसने भी एक मीटिंग कंडक्ट किया और लोगों को बोला चल फटाफट काम करते हैं। 10 मिनट बचा, 5 मिनट बचा, 2 मिनट बचा, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ा। आखिर में मैच खत्म हो गया, एक कोने में बैठा, लेकिन नेक्स्ट वन लर्निंग नंबर 12, अगर आपका इंटेंशन, इरादे नेक हो, इरादे स्ट्रांग हो, तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपका इरादा सच करने के लिए। देखो उसका बच्चे का उसने होप नहीं तोड़ा, तुरंत अनाउंसमेंट हो गया। मैं क्या बोला, अगर आपका इरादे स्ट्रांग हो तो पूरी कायनात जुड़ जाती है आपके इरादे सच करने के लिए। इंटेंशन स्ट्रांग हो तो द वर्ल्ड कंस्पायर्स टू मेक इट ट्रू। मैच खत्म हो गया, लेकिन अनाउंसमेंट हो गया ना, जिम ब्राउन स्टूडियो में आने वाला है, कैंटीन में आने वाला इंटरव्यू देने के लिए। दिस इज व्हाट वी लर्न। आप इंटेंशन स्ट्रांग रखो, अपना काम आप करो,
फिर दुनिया अपना काम करेगी। मैं हमेशा द सीक्रेट बोल के एक बुक है, मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, इंटेंशन स्ट्रांग होता है, पार्किंग मिलेगा, मुझे मिलेगा, और उसी वक्त एकदम मेरे जहां जाना है उसके बाजू में कार निकल जाती है और मुझे पार्किंग मिल जाता है, क्योंकि मेरा इरादा स्ट्रांग होता है। दुनिया कंस्पायर करती है और वो गाड़ी उसी वक्त निकलती है और मुझे पार्किंग मिल जाता है। एंड द लास्ट वन उल्टा है, टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम। कैंटीन में लोग आए नहीं कभी बीच में, फुटबॉल के लिए टिकट निकाला था ना, फुटबॉल का टिकट नहीं था, फुटबॉल देखते थे सारे लोग कैंटीन में, तब आए खरीदने के लिए जो भी पैटिस है या कोल्ड ड्रिंक है या चाय है, कब आए? ब्रेक में। आ सकते थे बीच में, लेकिन क्यों ही नहीं आया? क्योंकि वो जानते थे देयर आर टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन टाइम। इतना बड़ा स्टेडियम है, फिर भी कैंटीन हाफ टाइम तक खाली चल रहा है, बंद नहीं था, लेकिन लोग नहीं आते थे। आप पिक्चर देखने जाते हैं, हम लोग बीच में बाहर नहीं जाते हैं अनलेस आपका ये लर्निंग नहीं हो तो। हम पिक्चर पूरा देखते हैं, इंटरवल में लाइन में खड़ा रहकर शुरू करते हैं, इंटरवल में लाइन में खड़ा रहकर हम स्नैक्स पॉपकॉर्न लेते हैं, क्योंकि देयर आर टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम। लेकिन पढ़ाई के टाइम पर ऐसा नहीं सोचते हैं। अभी 2 बजे से लेकर 3:30 बजे का टाइम असेंबली का सीखने का टाइम है, लेकिन आप में बहुत कम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग आधे लोग निकल जाएंगे, क्योंकि और कुछ चीज आपको ज्यादा करना है, ये लागू ही नहीं होता आपको ये रूल। सो दीज आर द 12 लर्निंग्स दैट वी हैड। नाउ लेट मी कम बैक टू माई स्टोरी। मेरे कहानी नंबर 2 में आने दो। कहानी नंबर 1 से क्या सीखा है हमने अभी देख लिया। लेट मी कम टू ब्रश योर हैंड, बिकम एनर्जेटिक एंड वेट फॉर कहानी नंबर 2। जब पेपर में आ गया कि ओरिएंटल ओजे सिम्पसन ने जिम ब्राउन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उस वक्त एक कैरेक्टर का जन्म हुआ, एक कैरेक्टर दुनिया में था, उसका नाम था बॉबी रिचर्ड्स। बॉबी रिचर्ड्स फेथ प्रोक्लेमर था, बाइबल के बारे में, जीसस के बारे में, और यहाँ वहां की कहानियां लेकर लोगों के गांव-गांव में फिरकर लोगों को मोटिवेट करता था, इंस्पायर करता था। उसको सुनने के लिए कहीं 5,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 50,000 लोग आते थे। बहुत सारे फेथ प्रोक्लेमर है, बहुत सारे धर्म गुरु होते हैं जिसको सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए लोग जाते हैं। वैसे ही बॉबी रिचर्ड को सुनने के लिए हजारों में लोग आते थे, टिकट निकाल के आते थे, खड़े रहकर सुनते थे, स्टेडियम भर भर के आते थे, वेटिंग करके रुकते थे, 2-2, 3-3 घंटा पहले आकर बैठते थे ताकि आगे का सीट मिले। और उसी गांव में जहां बॉबी रिचर्ड आने वाला था, वहां पर एक कैरेक्टर था, बिल्ली जेके। बिल्ली जेके 13 साल की उम्र, 13 मतलब कितना, 8वीं या 7वीं क्लास, तो स्कूल जाती नहीं थी, क्योंकि वो 200 किलो की थी, 200 किलो। अगर मैं आप किसी भी 8th स्टैंडर्ड बच्चे को पूछोगे आपका वेट क्या है, मैं दिल्ली का, यहाँ पर दिल्ली का आपका वेट क्या है, दिल्ली का बोलेगी मेरी वेट 50 या 60 किलो है, 65 मैक्सिमम 60 किलो बोलेगी। लेकिन बिल्ली जो थी वो कितने किलो की थी? 200 किलो प्लस थी, 200 किलो। जब आदमी 200 किलो की लड़की बन जाती है, इतना बड़ा, यानी जितना हमारा बॉडी होता है ट्रंक, उसका तो एक हाथ उतना बड़ा था। इतना मोटा हाथ, इतना मोटा पैर, चल नहीं सकती थी, गला खत्म हो गया था, डबल चिन, ट्रिपल चिन, पूरा गला खत्म, ऐसा इतना मोटी बन गई थी और घर पे एक जगह पड़ी रहती थी। उसके डैडी को टेंशन था, फैमिली को टेंशन था कि ये मेरी बच्ची कौन शादी करेगा, ये तो जिंदगी भर मेरे घर में पड़ी रहने वाली है, क्योंकि इतनी ज्यादा वेट है, ये अपने आप से खुद टॉयलेट भी जा नहीं सकती है। और दिन में दिन बैठे खाती रहती थी। एक बार 24 बनाना खाती थी, 24 केला प्लेट में खाना, इतना बड़ा प्लेट था, 3 बार लेके खाती थी, कि पेट बड़ा था, भूख नहीं बैठती थी उसके। पिताजी कितना बोले बेटा कम खा, लेकिन वो मानती नहीं थी, भूख उसको बहुत ज्यादा था। अब भी खाती थी 2 घंटे पर, फिर भूख लगता था। डिपॉजिट एंड डिपॉजिट एंड डिपॉजिट। लोग मुझे मोटा कहते हैं, मैं मोटा हूं, लेकिन जब बिल्ली के बारे में सोचता हूं या बिल्ली का मैं इमेज देखता हूं, तो मुझे लगता है नहीं, मैं बिल्कुल पतला हूं। एनीबॉडी कैन, ही कैन, शी कैन गिव कॉम्प्लेक्स टू एनीबॉडी। इतनी मोटी थी। अभी अभी कहानी भी आया था कुछ 3 साल पहले, भारत में एक लड़की आई थी दूसरे देश से ठीक होने के लिए, फिर यहाँ से वो यूएई गवर्नमेंट लेके गई उसको अपना फैट निकालने के लिए। सिमिलर था बिल्ली, डैडी का टेंशन था, ये धरती का बोझ है मेरी बेटी, कौन लेके जाएगा इसे, कौन शादी करेगा। बाकी 13 साल के 14 साल की लड़कियां जब छोटी जवान होती हैं, तब कितनी अच्छी स्लिम स्लिम ब्यूटीफुल होती हैं, दे आर वर्किंग हार्ड। लड़कियां जब 8वीं 9वीं में आती, दे वर्क हार्ड ऑन हाउ दे लुक, दे वेरी कॉन्शियस। मुझे मेरे भांजी है, मिस इंडिया 3rd आई थी, शी इज वेरी वेरी कॉन्शियस राइट फ्रॉम द एज ऑफ 3rd स्टैंडर्ड। वो बहुत कॉन्शियस थी, अपने मिरर के सामने चलती थी, खुद को मिरर में देखती थी। कभी मैंने उसको आइसक्रीम दोगे, मामा मैं नहीं खाऊंगा, मेरी भांजी, मामा मैं नहीं खाऊंगी। क्यों? आप तो मुझे आइसक्रीम दे दोगे, लेकिन कल सुबह मुझे एक्स्ट्रा जॉगिंग करना पड़ेगा। और सारा दिन मिरर के सामने। मैं ऐसा क्यों करती हो बेटा? तो बोलती थी मुझे एक दिन मिस इंडिया बनना है।
और उसने अपना सपना पूरा किया। तो लड़कियां जब 8-9 में आती है, they invest a lot on how they look, they don't stop eating, they understand slim is beautiful। और यहाँ पर एक लड़की थी बिल्ली, जो खाना ही खाना खाते जाती थी। अभी 200 किलो, जब 14 साल की उम्र में बन गई 225, she became 220 kilos, यानी कि 500 पाउंड। उसके बाद 550 पाउंड, नो एंड। पिताजी परेशान थे, कहाँ जा रही है मेरी बेटी। और एक दिन उसने अलग अलग इलाज किया। उसने ही वेंट टू एलोपैथिक, वो इलाज किया, नहीं हुआ। ही वेंट टू आयुर्वेदिक, इलाज किया, नहीं हुआ। ही वेंट टू होम्योपैथिक, इलाज किया, नहीं हुआ। ही वेंट टू ऑल टाइप्स ऑफ साइंसेस, पंडित गुरु सबके पास गया। कुछ भी करो, ये लड़की का वेट बढ़ते जाता। उसका बेड जो बनाया था, स्पेशल बनवाया था उसके लिए, चेयर स्पेशल बनवाया था, बैठ जाए। वो जहां बैठी रहती थी ऐसे ठप बैठ जाती थी। फिर उसको उठा के बेड में रखना था, तो आवाज करती थी, पा पा पा। तो बाप क्या है, बोल नहीं पाती थी। टॉयलेट, तो उसको 4 जन घर के उठा के लेके जाए टॉयलेट में। टॉयलेट उसने स्पेशल बनवाया था, नॉर्मल दरवाजे में अंदर नहीं घुस पाती थी बिल्ली। नाम था बिल्ली जेके। नाउ ना बिल्ली जेके का ये हालत था कि वो कभी भी ही वॉज नॉट एबल टू टू डू एनीथिंग ऑन ओन। खुद का कोई फंक्शनल एबिलिटी खत्म हो गया। और उसके डैडी ने सारा इलाज ट्राई किया, सब इलाज ट्राई किया। जब कुछ भी नहीं हुआ, तब किसी ने बोला, हमारे गांव के बाहर जो ग्राउंड है, वहां पर अगले महीने के 10 तारीख को बॉबी रिचर्ड्स आने वाला है। और उसका वो सुनने में है कि वो जब बात करता है लोग मोटिवेट होते हैं, ही हील्स द वर्ल्ड। उसके डैडी बोलते हैं, किसी को बात करने से इसका वेट कम हो जाएगा? बोले कोशिश तो करो। बिकॉज वो आदमी ने इतना अच्छा बोला और सब जगह से नाम अच्छा था, तो उसके पिताजी बिल्ली को लेकर उस स्टेडियम का टिकट निकालते हैं, 2 टिकट निकाल कर 10 तारीख को टाइम से पहले जाकर एक कोने में, एकदम कोने में बड़ा चेयर, स्पेशल चेयर भी ले जाता है, वहां का चेयर से बैठ नहीं पाएगी, वहां बिठा देते हैं। उसका डैडी बाजू में खड़ा रहता है। और एकदम शाम को जब टाइम आता है, स्टेडियम में आता है, तो माइक पर आ जाता है बॉबी रिचर्ड्स। और वहां स्टेडियम में 20,000 लोग जमा है। आसपास गांव के 40 गांव के लोग आते हैं सुनने के लिए। सबने टिकट निकाल के आया। बॉबी रिचर्ड्स का खुद का प्लेन था, बॉबी रिचर्ड्स का खुद का आइलैंड था। बॉबी रिचर्ड्स बहुत पैसा कमाया था बोल के। एक कहानी दुनिया के हर जगह पर बोलता था वो। अभी क्या कनेक्शन है ये स्टोरी में, अब ये स्टोरी में बॉबी रिचर्ड जो कहानी बोलता था, वो वही कहानी है जो मैंने मंडे मंच में बोला है। लोग इंस्पायर करने मंडे मंच 1 में बोला है। वो क्या बोलने का, इस 2 घंटा लेकर, मैंने तो कहानी 40 मिनट में बोला है, वो 2 घंटा लेकर विस्तार में स्टोरी बताने का अबाउट जिम ब्राउन एंड अबाउट ओरिएंटल। और बताने का प्रूफ के साथ, ये देखो अखबार, ये अखबार में 1957 में लिखा है कि जिम ब्राउन इज चैलेंज। यहां लिखा है, एक बच्चे ने, 11 साल के बच्चे ने बोला है, अखबार में दिया है कि वन डे आई विल ब्रेक ऑल योर रिकॉर्ड्स। एक बच्चे ने एक वर्ल्ड सेंसेशन को चैलेंज किया है। एक अपाहिज बच्चे ने चैलेंज किया। एक अपाहिज बच्चे कोने में खड़ा था, जो 3 महीना घर से भागा हुआ था, उसने आके दुनिया के सबसे बड़े चैंपियन को चैलेंज किया कि एक दिन मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। ऐसा बोल के प्रूफ दिखाने का, अलग अलग पेपर में लोग देखते थे। उसके बाद वो क्या करने का, 10 साल के बाद क्या हुआ, ये पेपर है जहां पर इस बच्चे ने दुनिया भर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। देखो क्या लिखा है, ओजे सिम्पसन ने दुनिया रिकॉर्ड तोड़ा। यही ओजे सिम्पसन है जिसका नाम ओरिएंटल है। यही ओजे सिम्पसन है जिसने 10 साल पहले चैलेंज किया। यही ओजे सिम्पसन है जो अपाहिज था। यही ओजे सिम्पसन है आज दुनिया भर का वर्ल्ड सेंसेशन है। और 10 साल पहले विकेट लेग, पेंसिल लेग का बच्चा था। यही ओजे सिम्पसन है जो आज दुनिया भर में फुटबॉल का रिकॉर्ड, नाजीवुड का रिकॉर्ड तोड़ा, पर जिम ब्राउन का रिकॉर्ड तोड़ा। और यही है वो बच्चा जिसका पैर नहीं था, चल नहीं पाता था। एक ना चलने वाला बच्चे ने 10 साल में अपने आप को करके उसने आप स्ट्रांग बनाया और उसने रिकॉर्ड तोड़ा। ऐसे बोल के लोगों को इंस्पायर करने का। अगर ओजे सिम्पसन एक 11 साल का अपाहिज बच्चा कर पाता है, तो आप क्यों नहीं? और 11 साल का बच्चा अपना शॉर्टकमिंग ओवर कर पाएगा, तो आप क्यों नहीं? तुम में तो भगवान ने सब कुछ दिया है ऐसा कहानी बताने का। और ये कहानी बताने के लिए पैसा मिलता था। आज तो मैं आपको कहानी बता रहा हूं, मुझे तो कोई पैसा नहीं मिल रहा है, बट वो बहुत पैसा कमाया कहानी बोलकर। जिम ब्राउन और ओजे सिम्पसन की कहानी को पूरे दुनिया भर में बोल के उसने अपना आइलैंड खरीद दिया। जस्ट इमेजिन, वो कहानी बॉबी रिचर्ड के मुंह से सुनने के लिए, जबानी सुनने के लिए लोग टिकट निकाल के आते थे। पीपल इज टू फ्लॉक इन बिग नंबर्स जस्ट टू हियर दिस स्टोरी फ्रॉम
बॉबी रिचर्ड्स। ये लड़की भी बैठ के सुनती थी और बॉबी रिचर्ड का बोलने का स्टोरी टेलिंग एबिलिटी नहीं था, स्टोरी शोइंग एबिलिटी था। वो जब बोलता था लोग कहानी देखते थे, उसके सामने हो रहा है ऐसा दिखता था, स्टोरी शोइंग। तो 3 घंटा जब बॉबी रिचर्ड का बात यही कहानी उसके जबानी सुनते थे, लोग मोटिवेट इंस्पायर हो जाते थे। इंस्पायर होने के बाद आखिर में बोलता था आओ स्टेज में, और यहां पर आके जैसा वो बच्चे ने कोने में खड़ा रह कमिटमेंट दिया कि मैं पूरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, आ जाओ स्टेज में आके बोलो कि आप क्या करोगे आज से 10 साल बाद, आके बताओ स्टेज में, बताओ तुम क्या करोगे। तो कोई आता था स्टेज पे तो बेवड़ा के बोलता था ये मेरा दारू का बाटली, मैं कमिट करता हूं कल से मैं दारू छोड़ दूंगा, और बाटली फेंकने का। फिर जिम ब्राउन जो बॉबी रिचर्ड खड़ा होता था वो बोलता था माइक में, उसको एडवाइस देता था, हाँ भाई वेरी गुड, लेकिन कभी भी आप दारू के पास मत जाना, उसको हमेशा हमेशा 10 फीट दूर से फेंकना। कोई आके बोले मैं स्मोकर हूं लेकिन आज के बाद मैं स्मोक नहीं करूंगा, क्यों आके बोलने का कि मैं 10 बजे उठता हूं लेकिन कल के बाद मैं सवेरे 5 बजे उठूंगा। ऐसे लोग आके कमिटमेंट देते थे, और हर कमिटमेंट के बाद बॉबी रिचर्ड को एडवाइस देनी। ऐसा 15-20 लोग लाइन में खड़े थे बोलने के लिए स्टेज में आके, और लोग तालियां बजाते थे, वो टेस्टिमनी। उस वक्त ये लड़की जो यहाँ बैठी है इसे चेयर में, वो पापा को देख के बोलती है पा 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 पा। तो डैडी देखा बाबा इसको क्या हो गया, सुसु जाना है क्या, क्या हुआ बेटा, पा पा बिल्ली, क्या हुआ, टॉयलेट, नो बिल्ली। तो बोल नहीं पाती थी, तो बोलते बिल्ली। तो डैडी बोलते हाँ बेटा बेटा बोल 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 मेरे बेटे, क्या 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 बताओ खुशी से। डैडी देख कुछ तो बोलती है बिल्ली टेल, बिल्ली टेल, मतलब बिल्ली जाके स्टेज में बोलेगी। अब उसके डैडी इतने खुश होते हैं, माय गॉड मेरी बेटी जिसको कभी दुनिया में खाने के अलावा कुछ नहीं दिखा, वेट बढ़ते गया, ये इंसान ने 3 घंटे में ये स्टोरी बोलकर कुछ तो बोल रही है कि जाकर बोलेगी यस 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 भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब प्लीज हेल्प करो, भाई साहब प्लीज हेल्प करोगे क्या, भाई साहब प्लीज मुझे प्लीज मेरे बेटे को स्टेज में। तो अकेले बाप में दम नहीं था स्टेज में इतनी बड़ी धरती के बोझ को उठा के डाले। तो 6 जन का हेल्प लेकर उस वो बच्चे को, लड़की को लेकर वो चेयर के साथ हेल्प लेते 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 वो लाइन में खड़े हो जाते हैं, और फिर उसका नंबर आता है जब वो स्टेज में जाके बात करेगी। पिताजी के आंखों में आंसू है कि मेरी बेटी को कोई दुनिया में कुछ नहीं कर सका, बड़े बड़े डॉक्टर इलाज नहीं कर पाए, सब कुछ हुआ, लेकिन यहाँ पर ये आदमी आया बॉबी रिचर्ड्स, इसने जिम ब्राउन और ओजे सिम्पसन में कहानी बताया, और मेरी बेटी अब कुछ ना कुछ कमिटमेंट देने वाली, देखता हूँ क्या होगा। With hope in his eyes, with hope, with faith, कैसे भी करके मेहनत करके उस लड़की को स्टेज में चढ़ा देते हैं, और स्टेज में माइक के बाद ले जाते हैं, लड़की माइक के बाद आता है तो वहां पर बॉबी रिचर्ड्स उस लड़की को ऐसा देखता है, क्योंकि सीधा ऐसा नजर नहीं आएगी, इतनी चौड़ी थी वो, ऐसे देखता है। वो लड़की इतनी मोटी थी, उसका एक फोटो निकालना 4 बार फोटो निकाल के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, एक फोटो फ्रेम में नहीं आएगी। शी वाज सो बिग। ये लड़की माइक में खड़ी रहती है विद सपोर्ट, और फिर बोलती है तो खड़ी पूरी नहीं हो पाती है, तो कैसे लोग चेयर में बिठाते हैं, बड़ा चेयर उसका चढ़ा है स्टेज में, माइक में आती है तो बॉबी रिचर्ड्स बोलता है यस माय डियर बोलो। पिताजी बाजू में स्टेज के नीचे खड़े हैं कि मेरी बेटी क्या बोलेगी। ये लड़की माइक में जाके बोलती है वन डे आई बिल्ली बिकम वर्ल्ड टेनिस चैंपियन। तो बोलते क्या, वन डे आई बिल्ली बिकम वर्ल्ड टेनिस चैंपियन। तो सुना एक दिन मैं बिल्ली दुनिया की टेनिस चैंपियन बनूंगी। तो बॉबी रिचर्ड भी हिल जाता है, क्या बोल दिया इसने। इसको देखकर ये अपने आप खड़ी नहीं हो पा रही है, इतनी मोटी है, 500 किलो की वजन है, धरती का बोझ है, और ये यहां कर आके बोलती है कि मैं वर्ल्ड की टेनिस चैंपियन बनूंगी। उसका पिताजी बोलता है टेनिस से सुनता नहीं, कुछ तो कमिटमेंट दिया। बॉबी रिचर्ड्स के लिए भी ये ड्रीम इम्पॉसिबल था, कैसा हो सकता है, इम्पॉसिबल ड्रीम था। तो उसने ऐसा बोला ये ग्राउंड बेटा तुम्हारे घर से कितना दूर है। बिल्ली बोलती है 10 मिनट्स, 10 मिनट, बोल नहीं पाती है। तो बॉबी रिचर्ड बोलता है जब तक तू इस ग्राउंड का अपने आप से 4 राउंड भाग नहीं पाती है तब तक टेनिस का रैकेट हाथ मत पकड़ना।
till you don't run 10 rounds of this ground by yourself, do not hold the tennis racket in your head. मेरी लड़की बोलती ओके ओके, पूरी वजनदार ओके बोलती है और दुनिया ताली बजाती है, उसको नीचे उतार देते हैं। सबके लिए शायद वो जोक होगा, सबके लिए जोक था कि किस तरह से एक लड़की जो 500 किलो की है, चल नहीं पाती है, उसको स्टेज से चढ़ाने उतारने के लिए हेल्प चाहिए और वो बोलती है मैं टेनिस चैंपियन बनूंगी। टेनिस चैंपियन कैसा हो सकता है? आप सबको पता है टेनिस के चैंपियन, टेनिस कैसा गेम होता है। और उस वक्त उसने बोला कि मैं टेनिस चैंपियन बनूंगी। वापस घर आती है, उसका डैडी बहुत खुश हो जाता है, बोले पैसा वसूल, मेरी बेटी ने कुछ तो बोला। बॉबी रिचर्ड के लिए तो हर हर सेमिनार में बहुत लोग कसम खाते हैं, वो अपना बोल देते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 10 साल खत्म होता है, 10 साल खत्म होता है, 10 साल में बॉबी रिचर्ड रिटायर हो जाता है, रिटायर, और अपने आइलैंड में आराम की जिंदगी जीता होता है। उस वक्त मेल पोस्टमैन होता है, पोस्ट से उसको कोरियर आता है और पोस्ट में एक एनवेलप में 2 फर्स्ट क्लास टिकट होता है, फर्स्ट क्लास एयर टिकट। अब खुद का प्लेन है लेकिन उसको फर्स्ट क्लास एयर टिकट मिलता है। पहला तो प्लेन इसलिए चाहिए बिकॉज वो जाता था सेमिनार प्रवचन देने के लिए, उसका टीम साथ में आने का। अब तो उसको फर्स्ट क्लास टू द वर्ल्ड विंबलडन चैंपियनशिप, दुनिया का विंबलडन चैंपियनशिप के लिए आगे, पता है वीआईपी एनक्लोजर होता है, आगे बैठ के देखने का 2 टिकट और साथ में प्लेन का 2 टिकट, आना और जाना, ऐसा एनवेलप में आता है। बॉबी रिचर्ड को पता ही नहीं किसने भेजा है टिकट, बिकॉज फ्री में टिकट आता है प्लेन का फर्स्ट क्लास, वो भी बिजनेस क्लास, और फ्री में मिलता है टिकट आगे बैठ के टेनिस देखने का विंबलडन। ऐसे भी रिटायर्ड है तो बॉबी रिचर्ड चल जाके देखता हूं। और वो बॉबी रिचर्ड्स वो मैच देखने के लिए, विंबलडन फाइनल देखने के लिए, वो फ्लाइट का टिकट जो फ्री में आया वो लेकर पहुंचता है, रीचेस देयर टू सी द वॉच द विंबलडन फाइनल। द मैच वाज बिटवीन 2 प्लेयर्स, 2 प्लेयर के बीच में मैच था। एक थी वर्ल्ड 2 बार चैंपियन बनी हुई लड़की और एक थी नई सेंसेशन, एक नई सेंसेशन वर्सेस 2 बार चैंपियन बनी हुई। जो नई सेंसेशन थी, दुनिया के नजर इस पर थी, क्या ये रिकॉर्ड तोड़ेगी, क्या ये 2 बार जो चैंपियन बनी है वो हैट्रिक करेगी। दुनिया का नजर दोनों पर था। और ये बॉबी रिचर्ड आगे बैठकर मैच देख रहे हैं, टेनिस मैच आगे देखने में अलग मजा है। मैच चालू होता है, पूरे स्टेडियम भरा हुआ है, पैक, और आखिरी इसमें ये लड़की जो खेल रही है 2 बार, जो 2 बार खेल रही है, शी स्ट्राइक्स, और वहां पर रैकेट जाते ही, कॉक जाते ही, वहां की जो ऑपोजिट जो नई सेंसेशन है वो हार जाती है, और जो 2 बार जीती हुई कैंडिडेट है वो जीत जाती है। पूरा स्टेडियम उठ के चिल्लाता है, वाह, ताली बजाता है, एकदम सिक्योरिटी टाइट हो जाता है कि अभी लोग पागल हो जाएंगे, उत्तर क्या कैरी करेंगे। और ये लड़की अपने सर का बैंड उतारती है, बाल ऐसे ऐसे हिलाती है, रैकेट बाजू में रखती है और स्लोली चलती है ऐसे मुड़कर। बॉबी रिचर्ड बोलता है वाह, हैट्रिक मारा किसी ने, एक लड़की ने हैट्रिक, तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और देखिए क्या हो रहा है, ये लड़की जो है उसने हेयरबैंड निकाला, बाल हिलाया और रैकेट बाजू में चल के आ रही है, वो इसकी तरफ चल रही है। तो बॉबी रिचर्ड फिर देखता है और अपना नीचे देखता है, वापस ऊपर देखता है, वो लड़की उसके पास आ रही है। तो बॉबी बाजू में देखते हैं, बाजू वाले कैबिन में तो नहीं देखने जा रही है। फिर देखता है 2 मिनट बाद उसके पास पहुंच जाती है। तो बॉबी रिचर्ड्स को देख के बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोलते बोलते वो लड़की क्या बोलती है, वो लड़की बॉबी रिचर्ड्स को क्या बोलती है, वो बॉबी रिचर्ड को बोलती है, यू आर माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन एंड आई एम योर ग्रेटेस्ट अकम्प्लिशमेंट। सर जी, आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो, बॉबी रिचर्ड को लड़की बोलती है जो जीती। बॉबी रिचर्ड समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। यू आर माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन एंड आई एम योर बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट, और मैं तुम्हारी सबसे बड़े अकम्प्लिशमेंट हूं, तुम मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो और मैं तुम्हारी अकम्प्लिश। बॉबी रिचर्ड समझ में नहीं आता है, बोलते जी हाँ सर, मेरा नाम है बिल्ली जीन किंग। मैं बताया बिल्ली जे के, मेरा नाम है बिल्ली जीन किंग। जब आज से 8-10 साल पहले जब मैं मेरे गांव में स्टेडियम में आपको सुनने आई थी, तब मेरा वेट 500 किलो का था, तब मैं चल नहीं पाती थी। आपके स्टोरी से मोटिवेट होकर मैंने उसी वक्त कसम खाया कि मैं मेरा वेट कम करूंगी और दुनिया का टेनिस वर्ल्ड चैंपियन बनूंगी। आपने मुझे बोला था सर
कि जब तक तू ये ग्राउंड का उस ग्राउंड का 4 राउंड मत मारना, रैकेट मत पकड़ना। सर मैंने 4 राउंड जब तक नहीं मारते और अपने आप में नहीं चली तब तक मैं रैकेट नहीं पकड़ा सर। सर मैं पहले घर गई, खड़ा रहने की कोशिश की, आई ट्राइड टू स्टैंड अप सर, और मैं खड़े रहकर गिर जाती थी, मार चोट पहुंचता था। मैंने खाना कम किया सर, स्लोली कम किया, क्योंकि मेरे नजर के सामने था मेरा मोटिवेशन ओरिएंटल, और ओरिएंटल अपाहिज बच्चा कर पाता तो मैं क्यों नहीं कर पाता। ओरिएंटल अगर वर्ल्ड चैंपियन बन सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ओरिएंटल अपना अपाहिज, अपना शॉर्टकमिंग, ही कैन ग्रो ओवर शॉर्टकमिंग, तो मैं क्यों नहीं करूंगी। मैंने खाना कम किया सर, वेट कम करते करते आखिर मैं नॉर्मल चेयर में बैठ पाऊंगी। फिर मैं जाके वो ग्राउंड में चलने लगी, कुछ स्टेप, 6 स्टेप, 8 स्टेप, फिर एक राउंड मारने लगी, और 1 साल बाद मैंने 4 राउंड मारा। और सर जब मैंने 4 राउंड मारा उसके बाद ही सर मैं रैकेट पकड़ा। और आज सर मुझे आपको बताना है कि यू आर माई ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन एंड आई एम योर बिगेस्ट अकम्प्लिशमेंट। चाहे कोई भी लोग आपके न्यूज सुन कुछ भी हो जाए, मुझे पता है मैं आपकी सबसे बड़ी अकम्प्लिशमेंट हूं। और ये है कहानी बिल्ली जेके, बिल्ली जिन किंग। अब गूगल करोगे बिल्ली जेके, बिल्ली जिन किंग, बिल्ली जिन किंग, जो मैं BILLI जीन JEN किंग, आप गूगल करोगे मालूम पड़ेगा दुनिया की टेनिस चैंपियन रही है ये, सेंसेशन। और वही बच्ची 15 साल की उम्र में 500 किलो की थी। मेरी कहानी ये है, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। कहानी ये है, let us go back and see, क्या वो कहानी नंबर 1 का मॉरल कहानी नंबर 2 में अप्लाई होता है क्या? फटाफट देख लेंगे। वो 12 मॉरल अप्लाई होता है क्या, हम देख लेंगे। 12 मॉरल। लर्निंग नंबर 1, दिल्ली किंग ने भी यही क्योंकि उसको पता था, बॉबी रिचर्ड ने बताया था कि टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस। तो जब आज 4 स्टेप लिया, कल जब जाती थी ग्राउंड में 6 स्टेप लेती थी, परसों 8 स्टेप, परसों 12 स्टेप, फिर 50 स्टेप, फिर 500 स्टेप, फिर 1000 स्टेप, फिर फास्ट चलना, फिर भागना, टुडे मस्ट बी यस्टरडे प्लस। और जब चलने लगी उसने ये नहीं बोला कि मेरा वेट 500 किलो से 90 किलो में आया, उसने ये नहीं बोला मेरा वेट 500 किलो 70 किलो आया, बोली मेरी बेस्ट इज येट टू कम, अब तो मुझे टेनिस खेलना बाकी है। उसने बोला मैं वेट कम किया, नॉट इनफ, दुनिया की तारीफ सुन रहे हो, नॉट इनफ, अब माई कंपटीशन दुनिया किसी से नहीं है, मेरा कंपटीशन मेरे खुद से है। मैं प्लेज करती हूँ कि मैं कल का मेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। मेरा सपना है दुनिया की मैं बनूंगी वर्ल्ड चैंपियन टेनिस। मेरे ड्रीम सपने वो नहीं रहते, बॉबी रिचर्ड साहब आपने मुझे बताया, सपने वो नहीं रहते जो मैं सो के देखती हूँ, सपने वो होते हैं जो मुझे सोने नहीं देते हैं। हाँ जी, मुझे टेनिस वर्ल्ड चैंपियनशिप बनने का सपना मुझे सोने नहीं दे रहा था, और इसीलिए सपने अपने आप काम नहीं करते। आपने बताया मुझे काम करना है, इसलिए मैं काम करने लगी सर। बिकॉज ओरिएंटल ने अचीव किया, नॉट बिकॉज उसके पास सब कुछ था, ओरिएंटल के पास टांग नहीं था फिर भी अचीव कर पाया। इसलिए मैं भले ही 500 किलो की हूं लेकिन मैं अचीव करूंगी। ये मैंने आपसे सीखा सर, उस ग्राउंड में मैंने सीखा बॉबी रिचर्ड साहब आपसे, आई मस्ट फॉलो थ्रू। सिर्फ वेट कम करने से नहीं चलेगा, सिर्फ चलने से नहीं चलेगा, भागने से नहीं चलेगा, टेनिस प्लेयर खेलने से नहीं चलेगा, मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, मैं फॉलो थ्रू करूंगी। ये मैंने आपसे सीखा है सर। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता, ये मैंने सर आपसे सुना है, और इसीलिए मैं मेरा खुद का भी नहीं सुना सर। पिछला 8 साल मेहनत किया, और 8 साल बाद पहली बार मैंने चैंपियनशिप जीता, फिर दूसरी बार जीता, और अब जो हैट्रिक जीतने वाली थी तब मैंने आपको इनवाइट किया, और तब मैं आपको बोल रही हूँ सर, मैंने नहीं देखा कि मैं मोटी हूं, मैंने नहीं दुनिया क्या बोल रही है, मैंने देखा मेरे पास क्या है। मेरे घर, स्कूल के बाजू में ग्राउंड है, घर के बाजू में, मेरे पास अच्छे लविंग फादर है, मेरे पास विल पावर है सर। मैं ये देखकर मेरा जीत आया सर। मैंने कभी भी होप नहीं तोड़ा, उम्मीद नहीं तोड़ा सर। जिस तरह जिसका कहानी का पात्र जो मेरा है ओरिएंटल, उसने उम्मीद नहीं तोड़ा, मैंने भी उम्मीद नहीं तोड़ा सर। टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम में, हर चीज टाइम पर करती गई सर, एवरीथिंग ऑन टाइम किया सर। और मेरे इंटेंशन, मेरे इरादे इतने स्ट्रॉन्ग थे सर कि दुनिया ने कॉन्स्पायर किया कि मैं सच कर दूं। और यहां पर सर मैं आपके सामने खड़ी हूं 3 बार चैंपियनशिप जीतकर। ये रहा मेरी कहानी ऑफ 4 कैरेक्टर्स। मंडे मंच 2 इन कंट्री ऑफ वनडे मंच 1। आपको लग रहा होगा कि ओजे सिम्पसन लंगड़ा लड़का बन गया है, ओजे सिम्पसन ओरिएंटल लंगड़ा लड़का, ओरिएंटल अपाहिज लड़का बन गया वर्ल्ड सेंसेशन
आपको लग रहा होगा वैसे ही बिल्ली आर किंग 500 किलो की बन गई वर्ल्ड चैंपियन। इससे हमें मोटिवेट होना है। बट कहानी अभी खत्म नहीं होती है मेरे दोस्त। इस कहानी का थर्ड और आखिरी हिस्सा बाकी है, जो मैं आपको अगले मंडे बोलूंगा। अभी भी आपने कहानी नंबर 1 नहीं देखा है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती करता हूं, प्लीज वो कहानी और ये कहानी भी यूट्यूब में आएगा मंडे मंसू, दोनों को देखकर अगले मंडे आ जाओ। बिलीव मी, अगर आपने देखा और पूरे 12 प्रिंसिपल को याद किया, दुनिया में आपको अचीव करने में कुछ भी चीज रोक नहीं सकता। दोनों कहानी को आप देखोगे तो। सो दिस वाज माय मंडे मंच 2। आई होप यू आर, आई एम नॉट यू एंजॉयड। मुझे मालूम है कहानी बोलने का तरीका मेरा अच्छा है, बॉबी रिचर्ड के इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा है। आई नो आई एम गुड एट स्टोरी शोइंग, बट if it cannot my idea is not that you enjoy, my idea is that you get inspired। अगर आप इंस्पायर नहीं होते हो तो नथिंग है दुनिया में, कुछ भी चीज आपको इंस्पायर नहीं कर सकती। सो दिस वाज माय मंडे मंच 2। 3 आएगा, इसकी कंटिन्यूटी 3 है, बहुत बढ़िया है। जब तक आप 3 नहीं सुनोगे ये कहानी खत्म नहीं होती। जब तक आप 3 नहीं सुनोगे कहानी खत्म नहीं होती। पहले स्टोरी में 2 कैरेक्टर थे, जिम ब्राउन एंड ओरिएंटल। दूसरे कैरेक्टर में और 2 कैरेक्टर आ गए, बॉबी रिचर्ड्स और बिल्ली। अब अगले कहानी में 2 और कैरेक्टर आएंगे, एक जिंदा इंसान और एक मरा हुआ चीज। ये दोनों के बीच में जो वार्तालाप होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, वो हमारा कहानी है। हम देखेंगे अगला मंडे इस कहानी का तीसरा और आखिरी भाग। थैंक यू। सो एक साथ होकर बोलिए एसकेसी प्रणाम, बोलिए एसकेसी प्रणाम, बोलिए एसकेसी प्रणाम। लवली एसकेसी प्रणाम। सी यू ऑल नेक्स्ट मंडे विद मंडे मंच 3, इस कहानी का आखिरी और तीसरा भाग।